નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સમાચારોમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. આજે વિશ્વભરમાં 7મા યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. વિશ્વના 190 દેશમાં યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે. 21 જૂન આજે યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આ વર્ષની થીમ છે યોગા ફોર વેલનેસ. આયુષ મંત્રી રિજિજુ પણ રજૂ કરવાના છે યોગ. વિશ્વના 190 દેશોમાં આજે યોગ દિવસ તરીકે આજના દિવસને ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ દેશવાસીઓને સંબોધન કરવાના છે. રિજિજુ પણ સંબોધન કરવાના છે દેશવાસીઓને. ન માત્ર ભારત પરંતુ વિશ્વના 190 દેશો એવા છે કે જ્યાં આજના દિવસને યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. આજે 7મો યોગ દિવસ છે. 7 વર્ષથી 21 જૂનને યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. પુરાણોમાં જે રીતે યોગાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, માત્ર શારીરિક જ નહીં પરંતુ માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ યોગ ખૂબ જ અગત્યનું પરિબળ બની રહ્યું છે. ત્યારે આ વાતને વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોએ સ્વીકારી છે અને મોટા ભાગના દેશો એવા છે કે જે યોગ તરફ વળી રહ્યા છે, યોગને અપનાવી રહ્યા છે, પોતાની જીવનશૈલીનો એક ભાગ બનાવી રહ્યા છે. સીધી તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. અત્યારે હાલ બાબા રામદેવ અલગ અલગ યોગાના આસનો પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે. 7મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે આજે. ન માત્ર ભારતમાં પરંતુ મોટા ભાગના દેશોમાં આજના દિવસને યોગ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. ઋગ્વેદમાં યોગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જે સૌથી પ્રાચીન વેદ છે અને શિવને યોગના સંસ્થાપક એટલે કે આદિ યોગી કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં યોગનો ઇતિહાસ 5000 વર્ષ જૂનો છે. યોગની ઉત્પત્તિ ભારતમાં જ થઈ છે. સપ્તઋષિએ પણ ભારતીય ઉપમહાદ્વીપમાં યોગનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને યોગનું જે મહત્વ છે તે આજે દુનિયા પણ અપનાવી ચૂકી છે. અને અત્યારે હાલની જે પરિસ્થિતિ છે, ખાસ કરીને જ્યાં સ્વાસ્થ્ય સૌથી વધારે મહત્વનું બની ગયું છે, લોકોનું ઈલાજ કરતાં પણ લોકો અત્યારે હાલ એ દિશામાં કાર્યરત થયા છે કે તેઓ પહેલાં જ પોતાના શરીરની સ્વસ્થતા જાળવે, જેથી ઈલાજ સુધી તેમને પહોંચવું જ ન પડે. અને તેના માટે લોકો પોતાની જીવનશૈલીમાં યોગનો અત્યારે હાલ ભરપૂર માત્રામાં તેને હિસ્સો બનાવી રહ્યા છે. અને મોટા ભાગના દેશોએ કોરોનાના આ કપરા કાળમાં એ વાતને સ્વીકારી પણ છે કે કઈ રીતે જો રોજિંદી જીવનશૈલીમાં યોગને સ્થાન આપવામાં આવે તો તે કઈ રીતે અનેક ફાયદાઓ આપતા હોય છે. ન માત્ર શારીરિક સ્વાસ્થ્યની જાળવણી કરતું હોય છે યોગ, પરંતુ વ્યક્તિના માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ યોગનો એટલો જ મહત્વનો ફાળો રહેલો છે. યોગની ઉત્પત્તિ ભારતમાં જ થઈ છે. ભારતમાં અત્યારે હાલ મોટા ભાગના લોકો યોગ તરફ વળી ગયા છે. યોગનું જે મહત્વ છે તેને સ્વીકારવામાં આવી રહ્યું છે. ઘણી જ પ્રસિદ્ધિ પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. લોકચાહના પણ યોગને મળી રહી છે. પોતાના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા માટે, માનસિક શાંતિ માટે લોકો હવે યોગ તરફ વળી રહ્યા છે. ઘણા બધા રોગો એવા છે કે જે યોગથી દૂર કરી શકાય છે, તેનો ઈલાજ શક્ય છે. આ વાતને લોકો અપનાવી રહ્યા છે. અલગ અલગ યોગાસન જે હોય છે તેના અલગ અલગ ફાયદાઓ રહેલા હોય છે અને દરેકે દરેક અંગના ફાયદા માટે અલગ અલગ યોગા પણ છે અને તે પ્રમાણે જ લોકો અત્યારે હાલ યોગ તરફ વળી રહ્યા છે. શીતકારી ચંદ્રભેદી સૂર્યભેદી નાડી શુદ્ધિ કर्ण રોગાંતરક अभ्यांतर प्राणायाम जिससे जितना भस्त्रिका कपालभाति. चलिए कपालभाति करते. भस्त्रिका 5 से 10 मिनट सबको ऐसे ही करना है. और आज कोटि कोटि जन योग अभ्यास कर रहे हैं. एक बार सबका अभिनंदन है. भस्त्रिका कपालभाति और अनुलोम विलोम 2-3 साल के बच्चों से लेकर के और 100 साल के बुजुर्ग तक कर रहे हैं. और ये हमारा अजय बालक, ये तो स्केटिंग में योग करता है. जोरदार अभिनंदन है इस बालक, बहुत बहुत अभिनंदन. स्केटिंग पर योगा हो रहा है और इधर अब मलखंभ पर भी योगा होगा. आप दाईं तरफ मेरे देख रहे हैं. धरती पर योग करना मुश्किल होता है, आसमान में भी योग हो रहा है.
धरती से लेकर के आसमान तक योग गुंजायमान है। कपालभाति से भांति भांति की भ्रांतियां मिट रही हैं और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्र जागृत हो रहे हैं। देह दिवालय शिवालय बन रहा है। तो चलिए, इधर से कपालभाति चल रहा है, बाह्य प्राणायाम भी, अग्निसार भी, नोली क्रिया भी। ये नोली क्रिया तो ये नोली क्रिया से लेकर के अब मलखंब भी हो रहा है। यहां पर भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, नोली क्रिया, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कणरोगांतक, अभ्यंतर आदि प्राणायामों की मैंने कहा कम से कम 5 से लेकर के 15 प्राणायामों तक। जैसका जिसका सामर्थ्य, वैसे लोग इस योग में शिक्षित और दीक्षित हो रहे। और मैं जब 40-45 साल पीछे मुड़ करके देखता हूं, या मंच पर भी ये बड़े बड़े आप दृश्य देख रहे हैं, एक बार अभिनंदन है हमारे उन कोटि कोटि जनों का जिन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया और इसके लिए पतंजलि योग पीठ, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान कि हमारे वो लाखों कार्यकर्ता भाई बहन जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस सेवा को आगे बढ़ाया, निष्काम भाव से परमार्थ और पुरुषार्थ करते हुए इस देश को योग के माध्यम से जगाया और निरोग बनाया है। हाँ, कपालभाति करते करते आइए, कपालभाति और मलखंब पर भी योग होगा। तो आप एक तरफ कपालभाति और दूसरी तरफ ये मलखंब पर योग चल रहा है। सब कपालभाति करते रहे। के बाद आया एक युग अवतारी, काल प्रवर्तक योग प्रतापी, एक आयुर्वेदाचार्य। सबसे छोटा योगी सबसे पहले चढ़ रहा है। इसकी 2-2.5 फीट की हाइट है, इसकी ऊंचाई मापरा है। वो आयुर्वेदाचारी, मन से बलिष्ठ मन से हठी, वो योगी अलबेला, राष्ट्र भक्ति की ज्योत जगाई, हंसकर सब दुख झेला, सत्य कर्म पुरुषार्थ मन में लेके चला अकेला, घर घर हर हर और जन जन तक, हाँ रचा योग का मेला। अमावस का अंधियारा लाया पूर्णमासी, सच्चा योगी सच्चा ज्ञानी, उस ओजस्वी संत के ऋणी है भारतवासी, उस ओजस्वी संत के ऋणी है भारतवासी, काल प्रवर्तक योग प्रतापी, वो आयुर्वेदाचारी। बल प्रचंड वो मेरुदंड मन का भोला भंडारी, बल प्रचंड वो आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन
योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो, सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम,
जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी ताकत मिलती है, ये भी दुनिया के विशेषज्ञ खुद बता रहे हैं। साथियों, महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिकुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग प्राणायाम कराया जा रहा है। ये कोरोना से मुकाबले के लिए भी बच्चों की शारीरिक रूप में तैयारी कर रहा है। साथियों, भारत के ऋषियों ने हमें सिखाया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुषम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात योग व्यायाम से हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, सामर्थ्य मिलता है और लंबा सुखी जीवन मिलता है। हमारे लिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है और अच्छा स्वास्थ्य ही सभी सफलताओं का माध्यम है। भारत के ऋषियों ने भारत में जब भी स्वास्थ्य की बात की है तो इसका मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, दूसरी यौगिक क्रियाएं करते हैं तो हम अपनी अंतर चेतना को अनुभव करते हैं। योग से हमें ये अनुभव होता है कि हमारी विचार शक्ति, हमारा आंतरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है कि दुनिया की कोई परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी हमें तोड़ नहीं सकती। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। फ्रेंड्स, योगा टेल्स अस
that so many problems might be out there, but we have infinite solutions within ourselves. We are the biggest source of energy in our universe. We do not realize this energy because of the many divisions that exist. At times, the lives of people exist in silos. The divisions reflect in the overall personality as well. The shift from silos to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union," unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health. Yoga also gives us a happier way of life. I'm sure yoga will continue playing its preventive as well as positive role in healthcare of masses. साथियों, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने यूनाइटेड नेशंस WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आधार पर योग प्रशिक्षण के कई वीडियोस दुनिया की अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होंगे। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन विज्ञान के फ्यूजन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है एम योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, गीता में कहा गया है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, अर्थात दुखों से वियोग को, मुक्ति को ही योग कहते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली मानवता की ये योग यात्रा हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे,
अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 7મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર આયોજિત કાર્યક્રમને તેમણે સંબોધન કર્યું। તેમણે જણાવ્યું કે કઠિન સમયમાં યોગ આત્મબળનું સાધન બન્યું છે। ડોક્ટર્સે પણ યોગથી પોતાને મજબૂત કર્યા અને દર્દીઓને સાજા કરવામાં પણ તેનો ઉપયોગ કર્યો છે। ઘણી બધી હોસ્પિટલ્સમાંથી પણ એવા વિડીયો સામે આવ્યા કે એવી તસવીરો સામે આવી જેમાં ડોક્ટર દર્દીઓને યોગ શીખવાડી રહ્યા હતા। કોરોના કાળમાં દુનિયાના ખૂણે ખૂણાના લોકો યોગ તરફ વળ્યા છે કારણ કે યોગ સ્વાસ્થ્યનો પાયો મજબૂત કરે છે। યોગ લોકો સુધી પહોંચે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। યોગથી સહયોગ સુધીનો મંત્ર નવા ભવિષ્યનો માર્ગ બતાવશે। આજે 7મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે, તેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું। તેમણે જણાવ્યું કે ભારતના ઋષિઓએ આપણને શીખવ્યું છે કે યોગ અને વ્યાયામથી આપણને સારું સ્વાસ્થ્ય મળે છે અને સારું સ્વાસ્થ્ય એ તમામ પ્રકારની સફળતાનું માધ્યમ છે। સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે કોરોના કાળમાં કઈ રીતે લોકોએ દુનિયાભરમાં યોગને અપનાવ્યા છે। સ્વાસ્થ્યને મજબૂત કરવા માટે, સ્વાસ્થ્યને સંપૂર્ણપણે મજબૂત કરવા માટે લોકો યોગ તરફ વળી રહ્યા છે। ડોક્ટર્સ પોતે પણ દર્દીઓને યોગ શીખવાડતા હોય તેવી પણ ઘણી બધી તસવીરો સામે આવી રહી છે। ત્યારે યોગ લોકો સુધી પહોંચે તે ખૂબ જ જરૂરી છે। આપણે પોતે પણ યોગનો સંકલ્પ લેવાનો છે। યોગથી સહયોગ એ નવા ભવિષ્યનો માર્ગ બતાવશે। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કરીને યોગનું મહત્વ જણાવ્યું અને સાથે જ જણાવ્યું કે આપણે સૌએ પણ યોગનો સંકલ્પ લેવાનો છે। માત્ર એક દિવસ પૂરતું જ નહીં પરંતુ આપણી દૈનિક જીવનશૈલીમાં પણ યોગનો સમાવેશ કરવામાં આવે તેવો સંકલ્પ લેવાનો છે। નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર। આ હેડલાઇન્સના પ્રાયોજક છે